السلام علیکم، پروگرام ہے چائنا ٹوڈے اور میں ہوں آپ کی میزبان حفصہ آصف۔ یہ پروگرام GNN اور چائنا میڈیا گروپ کے اشتراک سے پیش کیا جاتا ہے۔ ناظرین، اس ہفتے بھی ہم چین کی مختلف شعبوں میں ترقی کے حوالے سے خصوصی رپورٹس ملاحظہ کریں گے، لیکن حسب معمول پروگرام کا آغاز کرتے ہیں سیگمنٹ چائنا دس ویک سے۔ پاک چین دوستی میں اہم پیش رفت، کاشگر اسلام آباد پروازیں 15 سال بحال ہو گئی اور اومچی کاشگر اسلام آباد بین الاقوامی روٹ 2009 سے معطل تھا۔ چین کے سنکیانگ بیغور خود اختیار علاقے کے شہر کاشغر سے پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کے لیے مسافر پروازیں 15 سال کے وقفے کے بعد دوبارہ شروع ہو گئیں۔ 27 جنوری کو چین اور دیگر ممالک کے 144 مسافروں کو لے کر کاشغر کے بین الاقوامی ہوائی اڈے سے اسلام آباد جانے والی یہ پرواز 2009 سے معطل اورمچی کاشغر اسلام آباد بین الاقوامی مسافر روٹ کی بحالی کی علامت ہے۔ یہ تقریباً 7 برسوں میں کاشغر سے روانہ ہونے والی پہلی بین الاقوامی پرواز بھی ہے۔ اس سے قبل مسافر کاشغر سے پہلے اورمچی اور پھر وہاں سے اسلام آباد کی جانب پرواز کرتے تھے۔ اس روٹ کی بحالی کاروباری افراد کے لیے بے حد سہولت کا باعث ہے۔ 15 سال کے وقفے کے بعد اس بین الاقوامی فضائی روٹ کی بحالی کاشغر اور دیگر علاقوں کے مابین رابطے کے لیے ایک مثبت اور بے حد اہمیت کی حامل پیش رفت ہے۔ ورلڈ ڈیجیٹل ایجوکیشن کانفرنس 2024 شنگھائی میں جاری ڈیجیٹل کانفرنس میں دنیا بھر سے مندوبین شرکت کر رہے ہیں۔ کانفرنس کا مقصد ڈیجیٹل تعلیم میں بین الاقوامی تعاون کا فروغ ہے۔ 29 جنوری کو شنگھائی میں ورلڈ ڈیجیٹل ایجوکیشن کانفرنس 2024 کا آغاز ہوا۔ کانفرنس کا مقصد ڈیجیٹل تعلیم میں بین الاقوامی تبادلوں کے لیے ایک اعلیٰ سطحی پلیٹ فارم تیار کرنا ہے۔ ڈیجیٹل تعلیم، اپلیکیشن شیئرنگ اور جدت طرازی کے موضوع پر منعقدہ 3 روزہ کانفرنس میں ایک عالمی ڈیجیٹل ایجوکیشن الائنس کی تشکیل اور چین کی اسمارٹ ایجوکیشن کے بین الاقوامی ورژن کے اجرا سمیت اساتذہ کی ڈیجیٹل خواندگی اور قابلیت کو بہتر بنانے، تعلیمی ڈیجیٹلائزیشن اور ایک لرننگ سوسائٹی کی تشکیل، مصنوعی ذہانت اور ڈیجیٹل ضابطہ کار کے ساتھ ساتھ ڈیجیٹل تعلیم کی جان جیسے موضوعات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ حالیہ برسوں میں چین نے عالمی ڈیجیٹل تعلیم کی ترقی میں قائدانہ کردار ادا کرتے ہوئے وسیع تعلیمی اور تدریسی وسائل کی حامل دنیا کی سب سے بڑی لائبریری تعمیر کی اور تعلیمی ڈیجیٹلائزیشن کے لیے معیار تفصیلات کی ایک سیریز جاری کی۔ چین بڑے پیمانے پر اوپن آن لائن کورسز اور ان کورسز کے شرکاء کی تعداد دونوں ہی کے اعتبار سے دنیا میں پہلے نمبر پر ہے۔ چین میں دستیاب MOOCs کی تعداد 76,800 سے تجاوز کر چکی ہے اور مقامی سطح پر ان کورسز کو اب تک 1.2 بلین سے زیادہ وزٹس مل چکے ہیں۔ 2023 کے آخر تک چین کے تاحیات تعلیمی آن لائن پلیٹ فارم نے 1 ملین سے زائد آن لائن ریسورسز اپلوڈ کیے، جنہیں 36 ملین سے زیادہ وزٹس موصول ہوئے تھے۔ گزشتہ برس چین کی مینوفیکچرنگ صنعت کے منافع میں 4% سے زائد اضافہ ہوا۔ ریلوے، جہاز، ایروسپیس، ٹرانسپورٹیشن، مٹیریل اور آٹو موبائل صنعتوں کو ریکارڈ منافع ہوا ہے۔ چین کے قومی ادارہ برائے شماریات کے اعداد و شمار کے مطابق 2023 میں چین کی مینوفیکچرنگ صنعت کے منافع میں اضافہ ہوا، جس سے مجموعی طور پر صنعتی شعبے کو تقویت ملی ہے۔ گزشتہ سال ملک نے نئے صنعتی ڈرائیورز کے فروغ اور استحکام کے ساتھ ساتھ صنعتی چین کو مزید بہتر بنایا۔ 2023 میں مینوفیکچرنگ انڈسٹری کے منافع میں 4.1% کا اضافہ ہوا، جو پچھلے سال کے مقابلے میں 2.4% پوائنٹس زیادہ ہے۔ اس شعبے نے سالانہ 20 ملین رین کی آمدن والے صنعتی اداروں کے منافع میں بھی 1.4% پوائنٹس کا اضافہ کیا، جو پچھلے سال کے مقابلے میں 8% پوائنٹس کا اضافہ ہے۔ مخصوص صنعتوں کے لحاظ سے جہاز سازی کے آرڈرز میں تیزی سے اضافہ ہوا اور آٹو موبائل کی ریکارڈ پروڈکشن جیسے عوامل سے ریلوے، جہاز، ایروسپیس، ٹرانسپورٹیشن، مٹیریل اور آٹو موبائل صنعتوں کے منافع میں پچھلے سال کے مقابلے میں بالترتیب 22% اور 5.9% اضافہ ہوا۔ برقی مشینری کی صنعت کو نئی توانائی کی صنعتوں میں ترقی سے تقویت ملی اور ان کے منافع میں 15.7% کا اضافہ ہوا۔ دریائے یانگزی ڈیلٹا کا علاقہ برقی کاروں، لیتھیم بیٹریز، شمسی پینل سازی کا مرکز بن چکا ہے۔ اس خطے سے 2023 کے دوران 541 بلین یوان سے زائد کی آمدن ہوئی ہے۔ دریائے یانگزی ڈیلٹا کے علاقے نے برقی گاڑیوں، لیتھیم بیٹریز اور شمسی پینلز کی ترقی سے چین کی غیر ملکی تجارت کی ترقی میں قائدانہ کردار ادا کیا ہے۔ اس خطے سے برقی گاڑیوں، لیتھیم بیٹریز اور شمسی پینلز کی برآمدات کے ذریعے 2023 میں
541.92 बिलियन yuan की आमदन हुई, जो मुल्क की मजमूई बरामदात का 51.2% है। सूबा जीजांग की एक टेक कंपनी की प्रोडक्शन लाइंस शमसी पैनल के तकरीबन 60 बॉक्सेस शौमिया तैयार कर रही हैं, जो जर्मनी, ब्राज़ील, स्पेन और दीगर ममालिक को फराहम किए जा रहे हैं। गुज़श्ता साल दरियाए यांगज़ी डेल्टा के मरबूत तरक्याती मंसूबे को कौमी हिकमत अमली में अपग्रेड करने की 5वीं सालगिरह मनाई गई। इन 5 बरसों के दौरान खित्ते की दरामदात और बरामदात में 37.3% का इजाफा हुआ है, जिससे मुल्क की मजमूई दरामदी और बरामदी कदर में इसके हिस्से में नुमाया इजाफा हुआ है, जो अब 36.3% है। चीन की प्रिंटिंग और रंगाई की सनत 5G टेक्नोलॉजी से मुस्तफीद हो रही है। पैदावार के डेटा इंटरफेस को मयारी बनाकर प्रोडक्शन को बेहतर बनाया गया है। चीन में प्रिंटिंग और रंगाई की सनत ने 5G से चलने वाले पहले सनती इंटरनेट प्लेटफॉर्म से फायदा उठाते हुए पैदावार के डाटा इंटरफेस को मयारी बनाकर प्रोडक्शंस को बेहतर बनाया है। मशरकी चीन के शहर नानजिंग में मारूफ चीनी टेलीकॉम फर्म चाइना यूनिकॉम अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए मुल्क भर में टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स को सर्विसेज फराहम कर रही है। इनमें से नानजिंग से सैकड़ों किलोमीटर दूर सूबा शानदुंग की एक फैक्ट्री है। कंपनी का डिजिटल प्लेटफॉर्म इस फैक्ट्री की 97 प्रोडक्शन लाइन, 1100 से ज्यादा सामान के सेट्स और 1,15,000 साइट्स के ऑपरेशन की निगरानी कर सकता है। माजी में मुख्तलिफ आलात को एक ही नेटवर्क से मुंसलिक किया गया था, ताहम इनकंसिस्टेंट डाटा इंटरफेस और मुतादिद एप्लीकेशंस की वजह से कुछ आलात के आदाद व शुमार दूसरे आलात के डाटा से अलग होकर दूसरे शोबों के लिए नाकाबिले रसाई हो जाते थे। ये प्लेटफॉर्म इसी मसले पर काबू पाने के लिए बनाया गया था। इसके जरिए प्रिंटिंग और रंगाई की पैदावार का अहाता करते हुए 100 से ज्यादा अक़साम के आलात के मॉडल तश्कील दिए गए, जिससे मुकम्मल कलेक्शन, रियल टाइम तज्जिया, नीज सामान और पैदावार के अमल का मौसर कंट्रोल, ऑनलाइन निगरानी, डाटा तज्जिया, खराबी की पेश की तशखीस और दीगर ऑपरेशन और बहाली की खदमात के जरिए उम्दा कंट्रोल भी फराहम हुआ है। इससे मैन्युफैक्चरर्स के लिए तवानाई की खपत, अखराज और नुकसानात में नुमाया कमी, जबकि मुनाफे में इजाफा हुआ है। CMG के स्प्रिंग फेस्टिवल गाला की तीसरी रिहर्सल का इनकाद हुआ। रवायती लेकिन जदीद प्रोग्राम में चीनी पकवानों की मुतनव्वी सकाफत पेश की गई है। फनकारों ने 9 फरवरी के प्रोग्राम के लिए 4 घंटों तक रिहर्सल की है। 28 जनवरी को CMG के स्प्रिंग फेस्टिवल गाला की तीसरी रिहर्सल का इनकाद हुआ। इस साल के स्प्रिंग फेस्टिवल गाला में तवज्जो चीन के बेहतरीन रवायती सकाफती अनासर से तख्लीकी तहरीक हासिल करते हुए जिद्दत तराजी की कुव्वत हासिल करने पर मरकूज है। रिवायती लेकिन जदीद प्रोग्राम्स में चीनी पकवानों की मुतनव्वि सकाफत पेश की गई। ड्रैगन के साल की ज़बरदस्त फसल और रिवायती एरोबिक्स की शक्ल के बायदो इंजन की तख्लीकी कारकर्दगी का मकसद सामीन के नाम नेक ख्वाहिशात भेजना है। फनकारों की एक बड़ी तादाद ने 4 घंटे तवील भरपूर और दिलकश प्रोग्राम में मौसीकी, रक्स, चीनी ओपरा, मज़ाहिया खाके, क्रॉस टॉक और दीगर दिलकश तफरीही ब्लॉकबस्टर्स पेश किए। इनके अलावा गाला में सोशल हॉटस्पॉट्स, चीनी अवाम की रोज़मर्रा ज़िंदगी और इनके हकीकी जज्बात का इजहार किया जाएगा। मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने रिहर्सल की इस तकरीब में शिरकत की और फनकारों को दिल खोल कर दाद दी। चीनी ज़बान में चनवन के नाम से मशहूर ये गाला 1983 से हर साल बराह रास्त नशर किया जाता है। इसे चीन के नए कमरी साल की रिवायती तकरीबात की अहम सकाफती अलामत माना जाता है। इस साल की तकरीब 9 फरवरी को नशर की जाएगी। काशगर में CMG गाला की प्रोमोशनल सरगर्मी मुनक्किद हुई। स्प्रिंग गाला बीजिंग, शिनयांग, शियान, काशगर, चांगशा में हुआ। सकाफती मेले में सेंक्यांग विगोर खुद इख्तियारी इलाके की तर्जुमानी की गई है। सिंगियांग वेगोर खुद इख्तियार इलाके के कदीम तारीखी शहर काशगर में CMG स्प्रिंग फेस्टिवल गाला की प्रोमोशनल सरगर्मी का इनेकाद किया गया। स्प्रिंग फेस्टिवल गाला मरकजी मकाम बीजिंग के अलावा शिनयांग, शियान, काशगर और चांगशा में भी मुनक्किद होगा। कदीम तारीखी शहर की दीवारों और दरख्तों को पहले ही सुर्ख लाल टेनों से सजाया गया है, जो त्यौहार के माहौल को मजीद पुरजोश बना रही हैं। सकाफती मसनूआत से भरा कार्निवाल सयाहों की तवज्जो का मरकज है। इस कार्निवाल में ड्रैगन ईयर की मुनासिबत से ड्रैगन पैटर्न के प्याले, टोपियां और खूबसूरत फ्लोट शामिल हैं। मकामी लोग इस बात पर फख्र और खुशी का इजहार कर रहे हैं कि स्प्रिंग फेस्टिवल गाला का एक ज़ेली मकाम इनका तारीखी शहर भी है। उनका कहना है कि इससे पूरी दुनिया के लोग काशगर की खूबसूरती को देख सकते हैं। CMG की तरफ से एक प्रोमोशनल इवेंट में दिलचस्प खेलों, इंटरैक्टिव सरगर्मियों का सिलसिला भी मकामी लोगों और सयाहों की दिलचस्पी का बायस रहा। मौसम बहार का त्यौहार जैसे जैसे करीब आ रहा है, चीन भर के शहरों में लोग रंगारंग तकरीबात से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। चीन भर में मौसम बहार के त्यौहार को खुशामदीद कहने की तैयारियां जारी हैं। ड्रैगन की शक्ल की लालटेनें जश्न की तैयारियों में नुमाया हैं। शिंगाई में डिजिटल टेक्नोलॉजी से मुज़य्यन आर्ट शो सजाया गया।
जनूब मगरबी चीन की काउंटी चोंगचिंग में नए साल की सजावट शेंगबा डिस्ट्रिक्ट की मशहूर शाहराह पर 3 गॉर्जियस प्लाजा एक शानदार अजायब घर में तब्दील हो चुका है। ज़ेर-ए-आब लाइटिंग ऑन होने के साथ साथ सड़कें शानदार रंगों की कहकशां का मंजर पेश कर रही हैं। डिस्ट्रिक्ट टोंगलियांग में कारीगरों ने ड्रैगन की शक्ल की लालटेन का एक सेट मुकम्मल कर लिया है जो 15 मीटर ऊंचा और 30 मीटर से ज्यादा लंबा है। कदीम वॉन्शिंग स्ट्रीट में मकामी लोग और सयाह मखसूस मकामी पकवानों को खाने की एक तवील मेज पर सजाकर दावत आम का एहतमाम कर रहे हैं। शंघाई में एक आर्ट नुमाइश का भी आगाज हुआ जिसमें मुख्तलिफ तरह के 10,000 ड्रैगन शामिल थे। सयाहों ने डिजिटल टेक्नोलॉजी से शानदार इंटरेक्टिव तजुर्बात भी हासिल किए। 18 जनवरी को रवायती लापा फेस्टिवल के बाद सुबह गांसू में ओपन एयर फेस्टिवल मार्केट्स में लोगों की भरमार है। सुर्ख कागज पर लिखे साल नौ के अशार और तस्वीर, रवायती चीनी लालटेन और ड्रैगन से मुतासरा दीगर आराइशी अशिया, भुने हुए मेवे, फल, कैंडीज और चाय भी खूब बिक रहे हैं। खूबे की काउंटी जानशी के घराने नए चीनी साल का इस्तकबाल करने के लिए चावल का रवायती केक सेवा बनाने में मसरूफ हैं। ये केक मीठा भी होता है और नमकीन भी। ये खानदान की हम आहंगी, इत्तेहाद और मकामी लोगों के लिए खुशगवार जिंदगी की अलामत माना जाता है। चीन ने जम प्लाज्म रिसोर्स की सूरत हाल जानने के लिए कौमी सर्वे का इनकाद करवाया। सर्वे में ज़राअत से वाबस्ता 9,20,000 से ज़ायद घरानों का अहाता किया गया है। इस सर्वे से मुल्क में ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने में मदद मिलेगी। चीन ने मुल्क के जर्म प्लाज्म रिसोर्सेज की मुकम्मल सूरत हाल जानने के लिए 2021 से 23 तक एक कौमी सर्वे मुकम्मल किया है। ये जर्म प्लाज्म रिसोर्सेज अनाज और अहम ज़रूरी मसनूआत की मुस्तहकम और महफूज फराहमी को यकीनी बनाने के अहम स्ट्रेटेजिक असासे हैं। वज़ारत ज़राअत और देही उमूर की जानिब से किया जाने वाला ये तीसरा कौमी सर्वे चीन में अपनी नौइयत का सबसे बड़ा और वसी तरीन सर्वे था, जिसमें पहली बार आबी ज़राअत को शामिल किया गया और इसमें 2,323 ज़रई काउंटीज और आबी ज़राअत से वाबस्ता 9,20,000 से ज़ायद घरानों का अहाता किया गया। इस सर्वे में 5,30,000 जर्म प्लाज्म रिसोर्सेज जमा किए गए। सर्वे के जरिए मुख्तलिफ ज़रई वसाइल की अक़साम, मिक़दार, तक़सीम और खुसूसियात की मुकम्मल समझ बूझ हासिल करते हुए कौमी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और अफ़ज़ाइश नस्ल की जद्दत को यकीनी बनाने के लिए एक ठोस बुनियाद रखी गई है। फसलों के लिहाज से नए जमा करदा वसाइल का 87.5% मकामी अक़साम है, जिनकी एक तवील तारीख, मुतनव्वु अक़साम और उम्दा जीनियाती खुसूसियात हैं। सर्वे की कवरेज चीन के शुमाल बईद में आबाद शहर मोहे से लेकर जनूब बईद में सांशा जजीरे तक और मशरिक में चूशान से लेकर मगरिब में सतह मुर्तफ़ा पामीर तक फैली हुई है। चीन मैनलैंड और ताइवान खत्ते के दरमियान फेरी सर्विस कामयाबी से जारी है। हफ्ते के रोज़ फेरी सर्विस 3600 से ज़ायद मुसाफिरों ने इस्तेमाल की है। फूजियान मैरीटाइम सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक चीनी मेनलैंड और ताइवान खत्ते के दरमियान मिनी 3 लिंक्स की फेरी सर्विस के जरिए हफ्ते के रोज 3600 से ज्यादा मुसाफिरों की आमद हुई। मिनी 3 लिंक्स के तहत फेरी खिदमात ताइवान जजीरे के रहायशियों के सफर के वक्त को कम करती हैं। बसूरत दीगर फूजियान के साहिली शहर शामिन या फूजियान के दीगर मकामात के लिए तवील परवाजों का ही इंतखाब करना पड़ता था। जश्न बहार की आमद है और आबनाई के दोनों अतराफ के ज्यादा से ज्यादा लोग अपने खानदानों के साथ मिलने के लिए मिनी 3 लिंक्स फेरी सर्विस का इस्तेमाल कर रहे हैं। सिर्फ हफ्ते के रोज ही मिनी 3 लिंक्स प्रोग्राम के तहत आबनाई पार के 4 रास्तों पर 22 बहरी जहाजों ने 3,602 मुसाफिरों के साथ मशरकी चीन के सूबे फूजियान और ताइवान के इलाके के दरमियान सफर किया। जुमे से शुरू होने वाले 40 रोजा स्प्रिंग फेस्टिवल ट्रैवल रश के दौरान पैसेंजर फ्लो में 1,20,000 तक इजाफे की तवक्को है। मिनी 3 लिंक्स फेरी सर्विस मौसम बहार की तातीलात के दौरान मुसाफिरों के बहाव में इजाफे के मुताबिक ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी में इजाफा करेगी ताकि आबनाई में हमवार सफर को यकीनी बनाया जा सके। मुसाफिरों का कहना है कि मिनी 3 लिंक्स ने इनके लिए घर वापस जाना और अहले खाना से मिलना आसान बना दिया है, क्योंकि अब रोजाना कई कश्तियां आती हैं। इसके अलावा मौसम बहार के त्यौहार के सफर के रश के दौरान फूजियान में 86 रास्तों पर 170 से ज्यादा मुसाफिर कश्तियां चलाई जाएंगी और इस अरसे के दौरान पानी के जरिए सफर करने वाले मुसाफिरों की तादाद 4.3 मिलियन तक पहुंचने की तवक्को है। आज ड्राइविंग कंडीशंस में स्मार्ट गाड़ियों की इंतहाई कारकर्दगी की जांच पड़ताल की जाती है। सुपर AIT टेस्ट बुनियादी तौर पर सेल्फ ड्राइविंग टेक्नोलॉजी पर मुश्तमिल है। चाइना ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने हार्ड ड्राइविंग कंडीशंस में स्मार्ट गाड़ियों की इंतहाई कारकर्दगी की जांच पड़ताल के लिए जांच का एक सिलसिला शुरू किया ताकि ज़्यादा मुस्तनद हिफाजती मयार दरियाफ्त किए जा सकें। ये सुपर AI टेस्ट बुनियादी तौर पर सेल्फ ड्राइविंग टेक्नोलॉजी, AI कॉकपिट टेक्नोलॉजी और गाड़ियों के इंटरनेट के इस्तेमाल पर मुर्तकिज़ है।
मौजूदा मरहले में सख्त हालात में गाड़ी की खुदकार हंगामी ब्रेकिंग, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल और खुदकार पार्किंग की कारकर्दगी की जांच की जा रही है। मिसाल के तौर पर सुरंग में एक हादसे का शिकार गाड़ी खड़ी थी और आजमाइशी गाड़ियां 60 से 70 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से सुरंग में दाखिल हुई। जांच के मुताबिक 30% से भी कम गाड़ियां AEB की कामयाबी से शनाख्त कर पाईं। इसके अलावा सिर्फ 30% से भी कम गाड़ियां तंग पार्किंग की जगह में बैठे हुए बच्चे से तकरीबन 5 मीटर के फासले पर रुक सकती थीं। एक और टेस्ट में बारिश के बाद रात में सिर्फ 20% गाड़ियों ने ही कामयाबी के साथ ट्राईसाइकिल की शनाख्त की और रुकी और ब्रेकिंग का फासला अमूमी तौर पर तकरीबन 1 मीटर रहा। ये तमाम टेस्ट मुस्तकबिल के लिए इन गाड़ियों को ज़्यादा महफूज बनाएंगे। चीनी तलबा के लिए बीजिंग, वुहान और नानजिंग में मुतअद्दिद यूनिवर्सिटी के लिए कैंप्स कायम किए गए हैं। इन कैंप्स में तलबा और अवाम को मुख्तलिफ किस्म की सहूलियात फराहम की गई हैं। चीनी तलबा के लिए बीजिंग, वुहान और नानजिंग में मुतअद्दिद यूनिवर्सिटीज़ ने अपने कैंपसेस खोल दिए हैं। नानजिंग में नानजिंग यूनिवर्सिटी ऑफ एरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉटिक्स का जानजिन रोड कैंपस 19 एरोस्पेस गाड़ियों की नुमाइश के साथ लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो कर रहा है, जिनमें शेनयांग J8, J28 और नानजिंग CK1 जैसे मकामी तौर पर डिज़ाइन करदा तैयारे शामिल हैं। कैंपस में ओपन एंट्री के बाद तलबा समेत लोगों की एक बड़ी तादाद ने इन हवाई जहाज़ों और रॉकेट्स को करीब से देखा। इसके अलावा वुहान यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन आर्ट म्यूजियम में वीकडेज के दौरान 1000 अफराद आते हैं और इख्तितामी हफ्ता पर यह तादाद 2 गुना हो जाती है। म्यूजियम में परिंदों और मैमल्स के नमूने और मुख्तलिफ सकाफती आसार बच्चों के लिए खास तौर पर दिलचस्पी का बायस हैं। बीजिंग की कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने भी अपने कैंपसेस को आवाम के लिए खोल दिया है। मिसाल के तौर पर बीजिंग यूनिवर्सिटी ऑफ सिविल इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर के डासिंग कैंपस ने अपनी मिंग झील को कुदरती आइस रैंक में तब्दील कर दिया है, जहां कम कीमत पर स्केटिंग की सहूलत मौजूद है। शेनयांग में ओलंपिक स्टेडियम आरजी आइस एंड स्नो पार्क में तब्दील। यहां 2008 बीजिंग समर गेम्स में फुटबॉल के मैचेस खेले गए थे। चीन के शुमाल मशरकी सूबे लियाओनिंग के दारुल हुकूमत शेनयांग के एक ओलंपिक स्पोर्ट्स स्टेडियम के इर्द गिर्द के मैदानों को आरजी तौर पर आइस एंड स्नो पार्क्स में तब्दील कर दिया गया है। तकरीबन 2 लाख मुरब्बा मीटर के रकबे पर फैला हुआ खुसूसी पार्क शेनयांग ओलंपिक स्पोर्ट्स सेंटर स्टेडियम के इर्द गिर्द तामीर किया गया है, जहां 2008 के बीजिंग समर गेम्स के दौरान फुटबॉल मैचेस खेले गए थे। अपने इफ्तिताह के बाद से एक माह में यहाँ तकरीबन 1 लाख लोग आ चुके हैं। अंदरून मंगोलिया के वीरान दूर अफ्तादा इलाके में माउंटेड पुलिस टीम तैनात की गई है। 10 अरकान पर मुश्तमिल टीम चरवाहों से मुलाकात करके उनके मसाइल जानती है। पुलिस अफसरान की एक टीम शुमाली चीन के अंदरून मंगोलिया खुद इख्तियार इलाके में एक दूर अफ्तादा और वीरान इलाके वलागई की सरहदों पर गश्त के लिए मुकर्रर है। 10 अरकान पर मुश्तमिल माउंटेड पुलिस टीम 2019 में तश्कील दी गई थी। चूँकि इनके दायरे इख्तियार में आने वाला तकरीबन निस्फ हिस्सा वेटलैंड्स और जंगलात जैसे महफूज इलाकों पर मुश्तमिल है, इसलिए इन्हें गाड़ियों की बजाय घोड़ों पर सफ़र करना पड़ता है। इनके फ़राइज़ में से एक मंगोलिया के साथ चीन की सरहदों पर गश्त करना है। हर गश्त में 80 किलोमीटर का फासला तय किया जाता है और कम से कम 2 दिन लगते हैं। रास्ते में वो बाकायदगी से मकामी चरवाहों की बरादरियों से भी मिलते हैं, उनकी ज़रूरियात को हर मुमकिन हद तक पूरा करते हैं। ख़ास तौर पर बर्फ़ानी मौसम के दौरान या दीगर हंगामी हालात में इनकी खिदमत काबिल तारीफ़ हैं। शदीद बर्फानी तूफान के दौरान इस टीम ने 5 फंसी हुई गाड़ियों में से 18 अफराद को बचाया और तेज़ हवा और बर्फबारी के बावजूद सुबह से रात तक बर्फ में फंसे लोगों की मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। चीन में मौसम बहार की तातीलात में सबसे बड़ी नकल मकानी होती है। लाखों अफराद मुख्तलिफ ज़रा इस्तेमाल करके अपने आबाई इलाकों को जाते हैं। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में मुलाहिजा कीजिए। चीनी ज़बान में मौसम बहार के त्यौहार के सफरी रश या चुनयुन को दुनिया की सबसे बड़ी सालाना इंसानी नकल मकानी के तौर पर जाना जाता है, क्योंकि लाखों अफराद साल के सबसे अहम त्यौहार के लिए घर पहुंचने और अपने अहल खाना और दोस्तों के साथ दोबारा मिलने के लिए ट्रेनों और नकलो हमल के दीगर पुरहुजूम ज़राए का इस्तेमाल करते हैं। चीन की वजारत ट्रांसपोर्ट के मुताबिक 2024 के सफरी रश के दौरान एक अंदाजे के मुताबिक 9 अरब सफ़र किए जाएंगे, जिसमें मजमूई तौर पर 7.2 अरब या तकरीबन 80% सफ़र सेल्फ ड्राइविंग के जरिए, जबकि 1.8 अरब सफ़र रेलवे, शाहराहों, आबी गुजरगाहों और शहरी हवाबाजी के जरिए किए जाएंगे। चीन के रेलवे ऑपरेटर्स के मुताबिक तवक्को है कि मुल्क का रेलवे निज़ाम रवां मौसम के दौरान 480 मिलियन मुसाफिरों की नकलो हमल को अंजाम देगा, जिसमें रोज़ाना औसतन 12 मिलियन सफ़र होंगे, जो गुज़श्ता साल के मुकाबले में 37.9% ज़्यादा है।
40 دن تک جاری رہنے والے اس سیزن میں لاکھوں افراد اپنے اہل خانہ اور دوستوں سے دوبارہ ملیں گے۔ اس سلسلے میں چین کے ریلوے نظام میں ٹکٹوں کی فروخت میں اضافہ دیکھا گیا اور 12 جنوری سے بکنگ کا آغاز ہونے کے بعد صرف 17 دنوں میں تقریباً 230 ملین ٹکٹ فروخت ہوئے۔ چائنا ریلوے بیجنگ گروپ کمپنی لمیٹڈ کے مطابق کمپنی کو موسم بہار کے تہوار کے سفر کے رش کے دوران 39.13 ملین مسافروں کے سفر کی توقع ہے، جو 2019 کے مقابلے میں 14.1% اضافہ ہے۔ ریلوے آپریٹرز نے 10 فروری سے پہلے روزانہ 12,700 ٹرینوں اور اس کے بعد 12,800 ٹرینوں کے چلانے کا انتظام کیا ہے۔ ریلوے نیٹ ورک فیسٹیول سے پہلے 14.4% اور تہوار کے بعد 12.6% زیادہ مسافروں کو سفری سہولیات مہیا کرنے کے قابل ہوگا۔ بیجنگ، شنگھائی، چونگکھنگ، ووہان، ژیان سمیت 10 شہروں کے لیے جانے والی ٹرینیں، طیارے اور بسز دیگر شہروں کی جانب جانے والی ٹرینوں کے مقابلے میں زیادہ ہیں۔ وزارت ٹرانسپورٹ نے مختلف نقل و حمل کے شعبوں جیسے ریلوے، شاہراہ، آبی شاہراہ اور شہری ہوابازی کے مابین نگرانی اور کوآرڈینیشن کو مضبوط بنانے کے لیے ایک خصوصی ورک ٹیم قائم کی ہے تاکہ نقل و حمل کی صلاحیت اور طلب کو پورا کیا جا سکے۔ اس سال نئے قمری سال کی تعطیلات 10 سے 17 فروری تک جاری رہیں گی، جو گزشتہ برسوں کے مقابلے میں ایک دن زیادہ ہے۔ توقع ہے کہ 40 روزہ تعطیلات کا موسم، جو باضابطہ طور پر 5 مارچ کو ختم ہوگا، کہ پہلے دن مجموعی طور پر 10.6 ملین ریلوے سفر کیے جائیں گے۔ گزشتہ سال مجموعی طور پر 3,637 کلومیٹر کی نئی پٹریوں کو آپریشنل کیا گیا تھا، جس میں 2,776 کلومیٹر فاسٹ ٹرین بھی شامل ہے۔ چائنا ریلوے کے مطابق نئی لائنز کے فعال ہونے سے تعطیلات کے دوران مسافروں کی نقل و حمل کی صلاحیت میں اضافہ ہوگا۔ چین کی سول ایویشن ایڈمنسٹریشن کے مطابق ملک کی فضائی کمپنیوں نے جنوب مشرقی ایشیا، جاپان، جمہوری کوریا اور دیگر ہمسایہ خطوں کے مشہور مقامات کے لیے بین الاقوامی سفر کی ممکنہ طلب کو مد نظر رکھتے ہوئے 40 دن کی مدت کے دوران 2,500 سے زیادہ پروازوں کا اضافہ کرنے کا منصوبہ ترتیب دیا ہے۔ ایئر چائنا موسم بہار کی تعطیلات کے دوران 67.691 پروازوں کا منصوبہ رکھتی ہے، جس میں آبائی شہر کے دوروں اور سیاحتی مقامات کے راستوں پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ چائنا ایسٹرن ایئر لائنز 3,280 پروازیں چلانے کا ارادہ رکھتی ہے، جو گزشتہ سال کے مقابلے میں 42% اضافہ ہے۔ چائنا سدرن ایئر لائنز چھٹیوں کے دوران 1,13,000 سے زیادہ پروازیں چلائے گی۔ بیجنگ، شنگھائی، شینزن اور ووہان سے چانگ بائی ماؤنٹین اور ننگبو سے ہاربن تک کے راستوں پر تقریباً 800 پروازیں شامل ہوں گی، جو برفانی علاقوں میں سیاحوں کی بڑھتی ہوئی سیاحت کی دلچسپی کو پورا کریں گی۔ ہینان ایئر لائنز موسم بہار کے تہوار کی سفری سرگرمیوں کے دوران تقریباً 32,000 پروازیں چلائے گی، جس میں بنیادی طور پر بیجنگ، ہائیکو، سائنیا، گونگجو اور شینزن سے گزرنے والے مقامی روٹس پر 46 وائڈ باڈی طیاروں کا استعمال کیا جائے گا۔ دوسری جانب تیز رفتار ٹرینوں کے 50 سے زیادہ بحالی مراکز مسافروں کو محفوظ سفر کی ضمانت دینے کے لیے تیار ہیں۔ ٹرین دھونے کا یہ نظام مکمل طور پر خودکار ہے۔ یہ نظام ماحول دوست نقطہ نظر کے ساتھ ری سائیکل شدہ پانی کا استعمال کرتا ہے۔ صفائی کے بعد ٹرینوں کو ثانوی دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے، جس میں بحالی کے مرکز میں الٹرا سونک اور دستی معائنہ دونوں شامل ہیں۔ جانچ کی جانے والی اشیاء کو نقصان پہنچائے بغیر پہیوں اور ایکسل کا معائنہ کرنے کے لیے الٹرا سونک ڈیٹیکشن کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تیز رفتار ٹرینوں کے لیے اس طرح کا معائنہ ہر 1,00,000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے کے بعد ضروری ہے۔ اس کے علاوہ میکینیکل اور تکنیکی ماہرین ٹرینوں میں 10,000 سے زیادہ اسکرو اور دیگر اجزاء کا باریک بینی سے معائنہ کرتے ہیں۔ ٹرانسپورٹ بیوروز اور ایکسپریس وے سروس کے علاقوں نے موسم بہار کی سفری سرگرمیوں کے دوران بڑھتے ہوئے سیلف ڈرائیونگ سفر کے لیے سازگار اقدامات کیے ہیں اور ٹرانسپورٹ سروس کی سہولیات میں اضافہ کیا ہے۔ ملک کی وزارت ٹرانسپورٹ کی پیشگوئی کے مطابق گزشتہ سال سفر کے رش کے دوران مسافروں کے کل بہاؤ میں سیلف ڈرائیونگ ٹورز کا حصہ 67.3% تھا اور اس سال یہ تناسب بڑھ کر 80% ہو جائے گا۔ مشرقی چین کے صوبے فوجیان کے ٹرانسپورٹ حکام کے مطابق اس عرصے کے دوران صوبے میں سیلف ڈرائیونگ کے سفر کا تناسب 84% تک پہنچنے کی توقع ہے۔ ٹریفک کے بڑھتے ہوئے حجم سے نمٹنے کے لیے صوبے میں ییبان سروس ایریا نے پارکنگ مقامات کی تعداد 200 سے بڑھا کر 710 کر دی ہے اور راہگیروں کو ایکسپریس وے پر براہ راست آنے یا باہر نکلنے کی سہولت فراہم کرنے کے لیے 4 لین کا ٹول اسٹیشن بھی کھول دیا ہے۔ صوبے نے الیکٹرانک ٹول کلیکشن فنکشنز کے ساتھ ٹریفک کے رش کو کم کرنے کے لیے 13 ٹول اسٹیشنز پر سیلف سروس پیمنٹ ڈیوائسز بھی نصب کی ہیں۔ ملک بھر میں نئی توانائی کی گاڑیوں کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کے ساتھ مشرقی چینی صوبے ژیجیانگ نے سروس ایریا میں انٹیلیجنٹ چارجنگ روبوٹس لانچ کیے ہیں تاکہ مصروف اوقات کے دوران فکسڈ چارجنگ پائلز کی عدم دستیابی میں مسافروں کی طلب کو پورا کیا جا سکے۔ کوڈ اسکین کرنے کے بعد روبوٹ خود ہی گاڑی کو تلاش کر لے گا۔
چارجنگ کی رفتار نسبتاً تیز ہے اور ہر روبوٹ تقریباً 4 کاروں کو ریچارج کر سکتا ہے۔ دوسری طرف موبائل چارجنگ کی سہولیات بھی متعارف کروائی گئی ہیں۔ یہاں وقت ہے ایک بریک کا، دیکھتے رہیے GNN۔ ویلکم بیک۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ ہر گزرتے سال کے ساتھ پاکستانی چاول کی برآمدات بڑھ رہی ہے۔ پاکستانی چاول کی دنیا میں بڑھتی مانگ میں چین کا اہم کردار ہے۔ اس حوالے سے خصوصی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ تاریخ کا مشاہدہ ہم پر انسان کی ارتقاء کے چشم کشا انکشافات کرتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ پہیے جیسی ایجادات انسانوں کی جانب سے اپنی بنیادی ضروریات کے حصول کے بعد سہولیات کی تلاش تھی۔ ان بنیادی ضروریات میں خوراک یقیناً سر فہرست ہے، جس کے حصول کے لیے انسان نے کھیتی باڑی کو اپنایا، جو ضرورت کی تکمیل کے ساتھ ساتھ پیشہ بھی بن گیا۔ دنیا کی قدیم تہذیبوں پر ہونے والی تحقیق ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ چاول خوراک کے طور پر کاشت ہونے والی فصلوں میں نمایاں ترین فصل ہے، جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ سال 2021 اور 2022 کے دوران دنیا بھر میں 520 ملین میٹرک ٹن چاول استعمال کیے گئے، جس کا تقریباً 10% حصہ پاکستان میں کاشت کیا گیا، اور پاکستان سے چاول کی برآمدات میں ہر گزرتے سال کے ساتھ اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے، اور پاکستان کی اس کامیابی میں آئرن برادر چین کا خاصا کردار ہے۔ یہ تو ایک قدرت کی نعمت ہے ہمارے اس پاکستان کی دھرتی کے اوپر کہ پاکستان کا جو باسمتی رائس ہے وہ نہ صرف پاکستان میں مشہور ہے بلکہ پوری ورلڈ میں، دنیا میں پاکستانی باسمتی رائس اپنے خوشبودار، ٹیسٹ وائز، کوالٹی وائز مانا جاتا ہے۔ میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے، آج سے 10 سال پہلے رائس ہمارا اچھا تھا، مگر کچھ لوگ اس کا ایڈوانٹیج لیتے تھے۔ یہاں سے ہمارا رائس دبئی جاتا تھا، وہ دوسرے ممالک اپنی پیکیجنگ میں کر کے بھیجتے تھے، مگر وہ دور ابھی چینج ہو گیا ہے۔ 10 سال سے ہمارے ایکسپورٹروں نے پاکستان میں محنت کی ہے، اپنے اوریجن کو مارکیٹنگ کی ہے، ڈیلیگیشن لے کے ہم باہر ممالک گئے ہیں، پاکستانی اوریجن میں، پاکستانی بیگ میں ہم نے اس چاول کو ایکسپورٹ کیا ہے۔ آج وہ جو ہماری ڈپلیکیٹ کرتے تھے، آج وہ اپنا چاول ہماری بیگ میں پاکستانی اوریجن کر کے آگے بھیج رہے ہیں۔ پاکستان کی رائس کا کراپ ہے جو ٹوٹل 9 ملین ٹن کا کراپ ہے۔ باسمتی سیکٹر پورا ہمارا پنجاب سیکٹر سے ہوتا ہے، جو ہمارا 4.5 ملین ٹن کا کراپ ہوتا ہے، جس سے پوری پاکستانی عوام بھی باسمتی کھاتی ہے۔ اس کے بعد جو ہمارا 8 سے 10 لاکھ ٹن جو پاکستانی چاول جو سرپلس ہے وہ ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ یورپین کی مارکیٹ ہے ہمارے پاس، مڈل ایسٹ کی مارکیٹ ہے، پورا ہمارا گلف سیکٹر ہے، یورپ، امریکہ ہے، کینیڈا ہے۔ کوئی ایسی کنٹری نہیں ہے دنیا میں جہاں پاکستان کا رائس نہیں جاتا ہے۔ پاکستانی چاول اور اس کے ایکسپورٹرز کے لیے یہاں تک کا سفر آسان نہ تھا۔ عالمی منڈیوں تک پاکستانی چاول کی رسائی میں جتنا عمل دخل حکومتی سرپرستی کا تھا، اسی قدر چاول کے کاشتکار اور پروسیسنگ سے پیکیجنگ تک کے مراحل میں شامل افراد کی آگاہی اور منصوبہ بندی بھی ضروری تھی۔ اس سارے کام کو سر انجام دینے کے لیے اس شعبے سے وابستہ چند افراد نے 1999 میں رائس ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن آف پاکستان ریپ کی بنیاد رکھی۔ میں نے جب 2001 میں چیئرمین کا عہدہ اٹھایا تو اس ٹائم پہ $300 ملین کا ایکسپورٹ تھا، اور الحمدللہ 2009 میں جب چیئرمین بنا تو ہم نے $2 بلین کو کراس کیا ود ان 8 ایئرس۔ جب پاکستان کی کسی ٹریڈ میں اتنی ترقی نہیں ہوئی جتنی رائس ایکسپورٹ میں ہوئی ہے، یعنی 800% ترقی ہوئی ہے 8 سال میں۔ پاکستانی باسمتی کی تو بہت ڈیمانڈ ہے، اس کا قریباً 10 لاکھ ٹن ایکسپورٹ ہوتا ہے اور وہ دنیا بھر میں لائک کیا جاتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ ہمارا جو نان باسمتی ہے، جو اس کی پیداوار سندھ میں ہوتی ہے، بہت کافی پیداوار ہوتی ہے، اس میں سے بھی 40 لاکھ ٹن ایکسپورٹ ہوتا ہے۔ یہ ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں پہ معاشی بحران ہے، جہاں پہ پیسے کی صورتحال صحیح نہیں ہے، اسپیشلی افریقن کانٹیننٹ اور ایشیا کے غریب ممالک، وہاں پہ ہمارا وہ چاول بہت پسند کیا جاتا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ وہ چاول کھانے میں زیادہ اچھا ہے، زود ہضم ہے، اس میں وہ تمام خصوصیات موجود ہیں جو انسان کو صحت مند رکھتی ہیں۔ جستجو کر رہے ہیں اور $3 بلین پہ پہنچنے والے ہیں، اور 300 ملین سے 3 بلین کا جو سفر تھا وہ بہت کٹھن تھا۔ اب آگے ہمارا ٹارگیٹ ہے 4.5 بلین کا۔
तो उससे हम चाहेंगे कि गवर्नमेंट हमारी कुछ सपोर्ट करे। रीप की बुनियाद रखने वाले एक्सपोर्टर्स बताते हैं कि उन्होंने पाकिस्तानी चावल को दुनिया में मुतारिफ कराने के लिए चावल की मुख्तलिफ डिशेस पकाकर बैरून मुमालिक की सड़कों पर तकसीम कराई। इसके अलावा इस शोबे में रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर भी खासी तवज्जो दी गई और पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स ने चीन के ताउन से ऐसा बीज तैयार किया कि चावल की फसल में इजाफे से इंतहाई कलील मुद्दत में किसान खुशहाल और मुल्क की जरूरत को पूरा करते हुए पाकिस्तान को बरामद करने के लिए चावल की बड़ी खेप हासिल होने लगी। फादर ऑफ हाइब्रिड राइस थे, मुझे नाम भूल रहा है, ली योंग करके कोई नाम था, तो वो जो है वो हाइब्रिड के फादर समझे जाते हैं, हाइब्रिडाइजेशन के। उनके साथ वेंचर किया और शहजाद अली मलिक साहब के सीड लाए। तो मैं आपको ये ऐड करता हूँ कि देखें राइस सेक्टर में ये एक प्रोग्रेसिवनेस है। हाइब्रिडाइजेशन ने क्या कॉन्सेप्ट दिया पाकिस्तान में कि अगर आप रूरल सिंध के अंदर देखें तो पावर्टी एलिवेशन के अंदर हाइब्रिडाइजेशन का बहुत बड़ा किरदार है, क्योंकि 100 मन से ज़रा तकरीबन 4 टन पर एकड़ यील्ड्स आ गई, जबकि इसके अगेंस्ट इरी की जो यील्ड्स थी वो अबाउट 1.6 to 1.8 टन पर एकड़ थी। तो आप इमेजिन कर लें डबल यील्ड के साथ फार्मर को ज़्यादा बेनिफिट हुआ ग्रो करने का, और जब वो खुशहाल हुआ तो उसने मज़ीद अपना एरिया बढ़ाया और इस तरह फिर एक सक्सेस स्टोरी बनती गई। पावर्टी एलिवेशन में बड़ा किरदार और उससे बढ़ के हमें सरप्लस क्रॉप फॉर एक्सपोर्ट मिली, तो हमारा रेवेन्यू फॉरेन एक्सचेंज वो बढ़ा। मार्केटिंग के रिवायती अंदाज से रिसर्च एंड डेवलपमेंट के सफर तक अब रीप से वाबस्ता मियां सबीउर रहमान ने द राइस स्टोरी यानी चावल कहानी के उन्वान से एक मुनफरिद जर्नल भी शाये किया है, जिसमें पाकिस्तानी चावल की फसल के यहाँ तक आने के मराहल को दुनिया के मारूफ रिसर्चर्स ने तहरीर किया है। चावल कहानी की तकरीब रूनुमाई ऐवान सदर में हुई, जहाँ बिरयानी फेस्टिवल भी मुनक्किद किया गया था और उसमें 8 इकसाम की बनी बिरयानी मुतारिफ कराई गई थी और पाकिस्तानी चावल को आलमी सतह पर मुतारिफ कराने में नुमाया किरदार अदा करने वाले एक्सपोर्टर्स को मेडल्स भी दिए गए। चावल कहानी जर्नल की एक और खास बात ये भी है कि इसको खोलते ही आपको ये गुमान होता है कि आपके आसपास ही कहीं मियारी चावलों का जखीरा मौजूद है। अरोमा से ही हमने कुछ पेपर क्वालिटी ऐसी ली है, अरोमा को मिक्स किया है इसके साथ, राइस के अरोमा को एक पेपर में मर्ज करके हमने एक मिक्स किया है। इन कागज़ से आपको अरोमा की स्मेल तभी आ रही है, ये उस मिट्टी की स्मेल है जी, उस मिट्टी की स्मेल है। आप देखते हैं ना जब कभी बारिश होती है खुश्क मिट्टी पे तो वो कतरे गिरते हैं तो एक फ्रेगनेंस आती है, बेसिकली वो फ्रेगनेंस हमारा चावल पिक करता है। इसमें बताया गया है कि भाई चावल आया कैसे, फिर चावल हमारे पास कैसे आया, फिर चावल को जो आने वाले चैलेंजेस हैं आने वाले वक्त में वो क्या हैं और उनकी बेहतरी कैसे हो सकती है, हमारी एक्सपोर्ट बेहतर कैसे हो सकती है, गवर्नमेंट इसमें हमारी मदद क्या कर सकती है, हमारा किसान कहाँ फंसा हुआ है, हमारे एक्सपोर्टर के क्या मसाइल हैं। काश्तकार हों या एक्सपोर्टर्स सब इस बात पर मुत्तफिक नजर आते हैं कि चावल की फसल को मजीद फायदेमंद बनाने के लिए दुनिया में ज़ेरे इस्तेमाल तरीक़ाकार को इख्तियार करने की ज़रूरत है, जिसके लिए चीन का एक कामयाब मॉडल के तौर पर हवाला दिया जाता है। चाइना जो हमारी राइस की क्रॉप के अंदर अच्छी डेवलपमेंट कर रहा है और उनके पास तमाम जेनेटिक मटेरियल भी अवेलेबल है, और हम मैं समझता हूँ चाइना से कोलैबोरेशन नीड ऑफ द टाइम है। हमें अपनी रिसर्च को चाइनीज़ के साथ कोलैबोरेट कराना पड़ेगा। चाइना से तो आप सारा कुछ सीख सकते हैं, चाइना की मशीनरी देखें, उनका मेथड देखें, वो चावल की 2 फसलें ले लेते हैं, हम एक भी पौधी नहीं लेते। उनका हील देखें, वो 100 मन पे हैं, हम अभी भी 30-40 मन पे हैं। तो मतलब 1000 चीज़ें हम चाइना से सीख सकते हैं। आप जितनी यहाँ पे हमारे पास जैसे कबूटा मशीन है, हमारे यहाँ बदकिस्मती है, हमारे पास एक ही मशीन है, हमने उससे गंदम भी उतारनी है, हमने उससे मूंजी भी उतारनी है। तो चाइना के ये जितने इक्विपमेंट अभी मेरा ख्याल है चाइना के पास है, दुनिया में किसी मुल्क के पास नहीं है। तो ऑल वी नीड कि हमें इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से कोलैबोरेशन स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी और हमें इन रिसर्चर्स को वहाँ पे भेजना पड़ेगा, वो टेम्परामेंट सीखना है और फिर आके वो इस पाकिस्तान में उसे इम्प्लीमेंट कर सकें। माहिरीन के मुताबिक चावल की एक्सपोर्ट पाकिस्तान की तीसरी बड़ी इकोनॉमी है,
अगर इसे इंडस्ट्री का दर्जा मिलता और नहरी निज़ाम की दुरुस्तगी हो जाती तो चावल की तिजारत में गुज़िश्ता बरस $300 बिलियन का टारगेट हासिल किया जा सकता था। पाकिस्तान में चावल की $4.5 अरब की एक्सपोर्ट की सलाहियत मौजूद है, जिसे टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और जदीद तरीक़ाकार को अपनाकर चंद बरसों में $450 अरब तक बढ़ाया जा सकता है। यहाँ वक्त है एक ब्रेक का, देखते रहिए GNN। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि चीन में मौसमी बहार को मनाने की तैयारियां अरूज पर पहुंच गई हैं। लोग बड़ी तादाद में जश्न बहार के लिए शय खरीद रहे हैं। इस हफ्ते हम आपको बीजिंग में कायम स्पेशल मौसम बहार फेस्टिवल बाजार की सैर करवाते हैं। आइए देखिए। नस्ल दर नस्ल से जश्न बहार चीनी लोगों के लिए एक कार्निवाल की हैसियत लगता है। इस कार्निवाल में जहां और चीज़ें अहम हैं, वहां सबसे अहम बाजार से ज़रूरी सामान की खरीदारी भी है। हेलो दोस्तों, मैं हूं सदफ और मेरे साथ मौजूद हैं एहसान साहिब। जी हाँ, मेरा ताल्लुक़ है पाकिस्तान से और मैं गुज़श्ता कुछ अरसे से चीन के शहर बीजिंग में मुकीम हूँ। जी हाँ, और आज हम बीजिंग के नए साल के त्यौहार की अशिया का एक बाज़ार में है और यहाँ त्यौहार को मनाने का ज़बरदस्त माहौल को महसूस करेंगे। जी बिल्कुल, जिले चलते हैं। ये बाज़ार चीनी लोगों के लिए बहुत अहम है क्योंकि यहाँ से जश्न बहार के लिए सब ज़रूरी चीज़ें आपको मिल जाती है। मसलन मुख्तलिफ़ सूबों के खुसूसी पकवान, दूसरे मुल्कों से आने वाला सामान और कुछ खुसूसी हैंडमेड मसनूआत भी है। जैसे मेरे पीछे ये शुगर से बनी तस्वीर है। मेरे साथी एहसान साहिब वो ये शुगर से बनी तस्वीर बनाना सीख लें, तो आइए वह देखते हैं। ये नया साल चूंकि ड्रैगन का साल है तो मैंने भी शुगर से जो तस्वीर बनाई है वो ड्रैगन की है और मेरी तरफ से सदफ आपको ये मैं तोहफे के तौर पर दे रहा हूँ, तो आपको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। वाह, ये बहुत ज़बरदस्त, शुक्रिया। खुश आमदीद। और सुना है कि यहाँ एक पाकिस्तानी स्टार भी है, तो आइए चलते हैं उस स्टार की तरफ। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं। ये मैं हूँ एहतसामुल हक और ये मेरे साथ मेरी साथी हैं, इनका नाम सदफ है और आपका नाम? आबिद है। तो हम फाइनली उस स्टॉल पर पहुँच गए हैं जो कि हमें बताया था जैसे सदफ ने कि ये एक पाकिस्तानी स्टॉल है और यहाँ पाकिस्तानी मसनूआत भी हैं और हमारी मुलाकात पाकिस्तानी से हो भी गई है। तो कितने अरसे से कर रहे हैं ये काम आप यहाँ पर? यहाँ चाइना में तकरीबन 8 साल हो गए काम करते हैं। सवाल वैसे पूछना तो नहीं बनता, ज़ाहिर है आपको इसमें अच्छा मुनाफा भी मिलता होगा सारी चीज़ें, लेकिन ये काम ओवरऑल कैसा है? और चीनी मार्केट में अगर आप आते हैं सामान लेकर बाहर से और यहाँ बेचते हैं, तो इसमें अगर हम कोई हमारा नया ऐसा ताजिर है जो तिजारत करना चाहता है, आना चाहता है, उसे क्या कहेंगे, कितना अच्छा काम है? अभी मेरे हिसाब से दुनिया में बहुत ज़्यादा मुल्क हैं और उनमें सबसे बेहतर जो है ना अभी कारोबार के लिहाज से, बिज़नेस के लिहाज से सिर्फ चाइना है, क्योंकि यहाँ हर चीज़ बिल्कुल ईजी है और लोग ज़्यादा ज़ाहिर कोऑपरेटिव हैं और गवर्नमेंट लेवल पे भी जो है ना बहुत ज़्यादा जो है हमें आसानी है। तो कारोबार करने के हवाले से चीनी हुकूमत की जानिब से क्या पॉलिसी है? चाइनीज़ पॉलिसी ये है कि उन्होंने जो है ना बहुत ज़्यादा आसानी की है सबके लिए, और ख़ास तौर पर सामान जो लाया जाता है, जो लॉजिस्टिक्स की सारी चीज़ें हैं, वो भी आसान है। हाँ, बहुत आसान है। पूरी दुनिया में सबसे अच्छा निज़ाम जो है ना लॉजिस्टिक का, वो चाइना में है। इस बाजार में जश्न बहार की तस्वीर का एक स्टॉल भी है और यहाँ हम तस्वीर बनाना हम सीख भी सकते हैं। ठीक है।
تو یہ ہے ایک اسپیشلٹی چین کی جو کہ فروٹس کے ساتھ شوگر کوٹڈ ہوتی ہے. یہ میں نے پہلی دفعہ میں ٹرائی کر رہا ہوں, میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں کھایا. بیجنگ کی ایک خصوصیت بتاؤں اور آپ کو آج کا بازار کیسا لگا؟ بہت زبردست لگا, اور سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ انڈر ون روف, یعنی ایک چھت کے تلے آپ کو ایک جگہ پہ ہر چیز مل رہی ہے. کھانے پینے کی چیزوں کا ذکر آپ نے کیا, لباس کا ذکر بھی آپ نے کیا, اور تمام چیزیں, اور خاص طور پر جو جشن بہار سے پہلے ایک رات, چاند رات کا جس کو ہم کہیں کھانا ہوتا ہے, اس کی تمام تیاریاں بھی یہاں آپ کو مل سکتی ہیں. یعنی آپ پکانے کے لیے جو بھی چیز آپ کو چاہیے ہو وہ یہاں سے مل سکتی ہے. تو مجھے تو بہت زبردست لگا, اور عید کا اور تہوار کا ماحول بھی مجھے یہاں دیکھنے کو ملا جس قدر گہما گہمی تھی. مجھے امید ہے کہ تمام ہمارے دیکھنے والوں کو بھی بہت پسند آیا ہوگا. مجھے یعنی اعتصام الحق کو اور صدف کو دیجیے اجازت. فی امان اللہ. اللہ حافظ. چائنا ٹوڈے سے اس ہفتے اتنا ہی. کسی بھی خبر کی مزید تفصیل جاننے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ GNNHD.tv. اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور ایکس پہ بھی فالو کر سکتے ہیں. دیکھتے رہیے GNN, کیونکہ GNN جانتا ہے.